اسی پہ بات کریں گے. پاکستان سے سینئر جرنلسٹ ماجد نظامی نے ہمیں جوائن کر لیا. السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ جو فیصلہ سنایا گیا ہے اس کے مختلف پہلوؤں کے اوپر لوگ بات کر رہے ہیں. آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ فیکٹر کیا ہے اس فیصلے کا, اس فیصلے کا ہونا, اس فیصلے میں جو نکات ہیں, جو اس کے مختلف پہلو ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ ایسا پہلو جو پہلے پاکستان نے نہیں دیکھا؟ ہم نے آئین توڑنے والوں کے اوپر غداری کا مقدمہ بنتے تو دیکھا ہے, لیکن سزائیں ہوتے ہم نے نہیں دیکھا, تو اس بار مختلف کیا ہے؟ جی بہت شکریہ. میرا خیال ہے اس بار دو پوائنٹ بڑے مختلف ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اپنے دور کے طاقتور ترین ڈی جی آئی ایس آئی کو جو 14 سال قید بامشقت ہوئی ہے, ایک تو یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جن الزامات کی بنیاد پر یا جن چارجز کی بنیاد پر انہیں یہ سزا سنائی گئی ہے وہ بڑے اہم ہیں. اور وہ اہم اس لیے ہیں کہ اس میں دو جو نکات ہیں, ایک یہ ہے کہ سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے بات کی گئی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ جو مس یوز آف اتھارٹی ہے اس کی بھی بات ہوئی ہے. تو یہ دونوں مجھے اس لیے امپورٹنٹ لگتے ہیں کہ پاکستان میں اس سے پہلے ان دونوں چیزوں پر بات تو کی جاتی تھی, لیکن ان کے حوالے سے کسی احتساب کا تذکرہ نہیں ہوتا تھا. اور اسی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ پہلی مرتبہ, اس سے پہلے ہمارے پاس کئی مثالیں ہیں. مثال کے طور پہ 2019 میں لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال اسپائن کے اوپر ان کا ایشو ہوا. اس سے پہلے بریگیڈیئر علی تھے, وہ حزب التحریر کے حوالے سے ان کا تھا. پھر اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ عبید اللہ خٹک تھے, جنرل راحیل شریف کے دور میں کرپشن کا معاملہ تھا. پھر جنرل ظہیر الاسلام عباسی تھے, ان کا 96 کا بڑا مشہور آپریشن خلافت تھا. تو کافی ہمارے پاس اس طرح کی ایگزامپلز ہیں. لیکن یہ جو الزام لگتا تھا کہ جی ادارہ سیاست میں ملوث ہے یا ادارے کے لوگ پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے ہیں, اس کو پہلی دفعہ میرا خیال ایڈریس کیا گیا, اور یہ بڑا خوش آئند ہے. اور یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے کہ اب اس بیس کے اوپر بھی کاروائی کی جا سکتی ہے. تو اس لیے میں اس کو بڑا امپورٹنٹ دیکھتا ہوں, اور میں دیکھتا ہوں کہ مستقبل میں اس کا بڑا امپیکٹ ہوگا, کیونکہ یہ ایک روایت بن سکتی ہے, ایک سنگ بنیاد رکھا گیا ہے, ایک نشان منزل بن گیا ہے کہ مس یوز آف اتھارٹی اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں جو انوالومنٹ ہے وہ بھی قابل سزا جرم ہے. ماجد, کچھ اس حوالے سے بھی بتائیے گا. یہ ٹھیک ہے فیض حمید جو ہیں ان کے اوپر مقدمہ بھی چلا, ان کو اب سزا بھی ہو گئی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے اس میں کیا کسی اور کے لیے بھی کوئی میسیج ہے؟ یہ معاملہ یہیں تک رک جائے گا؟ اس میں مزید جیسے کہا بھی گیا فیصلے میں کہ جو سیاسی معاملات ہیں اس کی مزید بھی جانچ جو ہے وہ ہوگی, تو پھر اس کی لپیٹ میں اور کون لوگ آ سکتے ہیں؟ اور خاص طور پہ جو آج ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پہ یہ بات بہت زیادہ, بلکہ جو میڈیا ہے پاکستان کا اس میں بھی کچھ جگہوں پہ یہ بات ڈسکس ہو رہی تھی کہ اب جو فوجی عدالتوں کے ذریعے سے مزید بھی کچھ لوگوں کو سزا, اور اس میں سویلینز بھی ہو سکتے ہیں, سیاسی رہنما بھی شاید کوئی ہو سکتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کی راہ بھی ہموار ہو سکے گی اس فیصلے کی بنیاد, اس فیصلے کو بنیاد بناتے ہوئے؟ جی بالکل, یہ بڑا امپورٹنٹ فیصلہ ہے, اور اسپیشلی جو آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز ہے اس کا جو آخری پیراگراف ہے اس میں کچھ لائنز ہیں کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو مزید معاملات ہیں ان کے حوالے سے ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے, اور چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے, اور اس کو سیپریٹلی ڈیل کیا جائے گا, ایک علیحدہ سے اس کو رکھا جائے گا. اب وہ معاملہ کیا ہے, اس میں ہم پاکستان مسلم لیگ نون کا, پیپلز پارٹی کا, ایم کیو ایم کا, جماعت اسلامی کا نام تو نہیں لے سکتے. اس میں نام ایک ہی آئے گا جس میں ہم 9 مئی میں تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں. 9 مئی میں تحریک انصاف کے دو موقف ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ فالس فلیگ آپریشن تھا اور ہمیں اس کے اندر فساد دیا گیا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ فالس فلیگ آپریشن تو نہیں تھا, کیونکہ ہمارے قائد کو گرفتار کیا گیا تھا تو وہ اس کے حوالے سے ہم کچھ جذباتی ہو گئے تھے, اور کارکنوں نے جا کے مختلف جگہوں پہ احتجاج کیا اور جلاؤ گھیراؤ کیا. لیکن جو حکومتی یا ریاستی موقف ہے وہ اس سے مختلف ہے. وہ مختلف اس طرح سے ہے کہ ان کے خیال میں یا ان کی اطلاعات کے مطابق 9 مئی کو ایک بغاوت کا پلان تھا اور ایک سازش تھی کہ جس کے اندر جنرل فیض حمید اور ان کے کچھ دوست, ان کے احباب
उनकी जानिब से मुख्तलिफ लोकेशंस के बारे में खबर दी गई थी और बताया गया था कि यहाँ यहाँ पर एहतजाज किया जाए, जलाओ घिराव किया जाए, तो उससे हुकूमत और खसूसन फौज जो है वो दबाव में आ जाएगी। और चूंकि आर्मी चीफ उस वक्त मुल्क से बाहर थे, तो एक ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि जिसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर का मसला होगा। लेकिन बहरहाल चूंकि वो कामयाब नहीं हो सका, तो अब ये वाला जो एक स्पेसिफिक स्केच है, इसको पूरा करने के लिए या इसको साबित करने के लिए अगर अदालत के अंदर कोई नाकाबिले तरदीद शवाहिद आ जाते हैं या कोई ऐसी एविडेंस आ जाती है कि जिसमें ये कह रहे हैं कि जनरल फैज हमीद की वजह से या उनकी साइड से कुछ ऐसी चीजें हैं, उनके कुछ फोन्स हैं, उनकी कुछ कम्युनिकेशन है, कुछ कन्वर्सेशंस हैं कि जिनकी बुनियाद पे ये इस्टेब्लिश किया जाएगा कि वाकई उस दिन ये तमाम लोग आपस में राब्ते में थे और इनका एक बड़ा प्लान था। ये महज अपने कारकुन जो हैं वो अपने लीडर की गिरफ्तारी के लिए इकट्ठे नहीं थे, इससे कुछ ज्यादा था। तो वो जो एक स्पेसिफिक थ्योरी है, अगर वो साबित हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है, तो फिर 9 मई के अंदर तहरीक इंसाफ को भी और इमरान खान को भी मजीद परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सही। अच्छा, एक मैं चूँकि आप बहुत क्लोजली वॉच करते हैं फ़ौज के जो मामलात होते हैं, जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स होती हैं, उनके हवाले से भी सबसे पहले आपके ज़रिए से हमें मालूम होता है। पिछले दिनों DGISPR ने कुछ सहाफ़ियों से बात करते हुए ये कमेंट भी किया कि आप लोग दूसरे मामलात पर भी नज़र रखा करें, बेहतर मामलात फ़ाइंड कर सकते हैं। आप लोग भी हर वक्त उनके कहने का मतलब था कि फ़ौज पे ही सारा फोकस रखते हैं। हम इसमें भी कोई शक नहीं है, पाकिस्तान में अगर फ़ौज से रिलेटेड एक हेडलाइन आ जाए तो वो बुलेटिन में सबसे ऊपर हेडलाइंस में चली जाती है। आर्मी चीफ़ की आ जाए तो वो सबसे बड़ी ब्रेकिंग बन जाती है। हर न्यूज़ शो और न्यूज़ बुलेटिन का आगाज़ उससे हो रहा होता है। आज फिर अब एक खबर आ गई है फ़ौज के अपने अंदर एहतसाब से मुतालिक। आज पाकिस्तान की मीडिया ने इसको किस तरह से कवर किया है? क्या जो इंसानी या बाकी जो मामलात हैं, अवामी मामलात, उसको फोकस रखा गया या आज यही फोकस रहा है पाकिस्तान की मीडिया का? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल इसलिए है कि DGISPR ने कहा था कि आप फौज के ऑब्सेशन से बाहर निकलें, रियल इश्यूज पर फोकस करें। अब इशू ये है कि आज ये जो फैसला आया है, ये चूंकि एक अहम फैसला है, बड़ा फैसला है, और मामला ये है कि इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है कि ये जो पिछले 5 साल या 10 साल में जो हुआ, जिसको प्रोजेक्ट इमरान कहा जाता है या जिसके बारे में कहा जाता है कि उस वक्त के जो लोग थे अब वो मातूब हैं, और जो उस वक्त के मातूब लोग थे अब वो ताकत के कॉरिडोर्स में मौजूद हैं। तो आज इस फैसले पर जितनी भी डिस्कशन हुई है, उसको मेरा ख्याल है कि रियासत और हुकूमती इदारे बेहतर इसलिए समझते हैं कि ये उन्हें सूट करती है, उनके मुफादात के हवाले से मुताबिकत रखती है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके अंदर कोई एंटी एस्टेब्लिशमेंट बात हो, या मिसाल के तौर पे एक बयानिया ये भी है कि ये पाकिस्तान फौज के अंदरूनी निज़ाम का, इक़्तिसादी निज़ाम का एक मजहर है, एक कामयाबी है कि उन्होंने इस सारे मसले को हल किया है। तो इसीलिए इसके ऊपर डिस्कशन भी हो रही है। चूंकि इमरान खान जेल में हैं, अपोजिशन में हैं, हुकूमत के एंटी हैं, और जनरल फैज हमीद का उनके साथ ताल्लुक था, उनके DGISI थे, मिलकर उन्होंने काम किया, तो इस सारे मसले के अंदर कोई ऐसा इशू नजर नहीं आता कि जिससे गवर्नमेंट को खतरा हो, बल्कि उनका जो नैरेटिव है उसको तकवीत मिलती है। तो इसलिए आज इसके ऊपर बिल्कुल बात हो रही है, आने वाले दिनों में भी इसके ऊपर बात होगी, और इस हवाले से गवर्नमेंट को फिलहाल कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे वो कहें कि ये एक नॉन इशू है और इसको आपने इशू बना दिया। बिल्कुल। अच्छा माजिद, इससे पहले की अगर बात करें, ख़ास तौर पे सदर जो मुशर्रफ और वो आर्मी चीफ भी रहे हैं, उनके हवाले से जब चीज़ें होती थी, उनको कहा जाता था कोई सख्त मुकदमा चलाने का, सख्त सज़ा सुनाने का, तो मुल्क में मौजूद बहुत सारे लोगों के अलावा जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनकी जानिब से भी ये कहा जाता था कि जी इससे फ़ौज का जो मोराल है वो डाउन होगा, फ़ौज के अंदर जो हाजिर सर्विस लोग हैं वो भी मुतासर हो सकते हैं, उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो ठीक है, फैज़ हमीद जो हैं वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ तो नहीं रहे, लेकिन बहरहाल ISI के चीफ़ रहे हैं, जो आर्मी चीफ़ के बाद एक बहुत अहम ओहदा जो है वो माना जाता है। उनके भी बहुत सारे मातहत होंगे, कुछ हो सकता है रिटायर हो गए हों, कुछ हो सकता है अभी तक सर्विस में हो। तो आपको लगता है, आपके ख्याल में आप जो
देखते हुए इन तमाम चीज़ों को कि फ़ौज में इस हवाले से भी कोई बेचैनी हो सकती है, या जैसे बकिया मुल्क में या मीडिया में इसको एक बहुत मस्बत डेवलपमेंट के तौर पे लिया जा रहा है एक बड़े हिस्से में, और कहा जा रहा है कि फ़ौज का जो अपना इंटरनल निज़ाम है बिल आखिर उसने सियासी मामलात के हवाले से भी जो लोग इन्वॉल्व थे उनको सामने भी लेके आए, उनको सज़ाएँ भी सुनाई। तो क्या आपके ख्याल में फ़ौज के अंदर भी यही सेंटीमेंट होगा नीचे तक? देखिए, उसमें हमारे पास 2-3 ऐसी एविडेंस मौजूद है कि जिसमें हमने ये देखा है कि पिछले 2 से 3 साल में वो तमाम लोग कि जो स्टेट की पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं रखते थे, ख़्वाह वो अदलिया में हो, ख़्वाह वो फ़ौज में हो, ख़्वाह वो सियासत में हो, तो उनकी स्पेस कम हुई है। बिल्कुल हाँ इसी वो तरह वो मीडिया में तमाम हो, रिटायर्ड प्लीज मीडिया जी, का जी, भी मीडिया में ऐड तो कर दें। ख़ुसूसन मीडिया में तो क्योंकि सबसे कमज़ोर हम हैं ना जी, तो चौथा बर्क़ स्तून हमारे पे सबसे गिरती है। कमज़ोर है। तो वो इस वजह से जो प्रेसिडेंट सेट किया गया है उसको देख के नहीं लगता। मिसाल के तौर पे बहुत से ऐसे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं जो इस चीज की शिकायत करते हैं कि उनके पेंशन्स के हवाले से, उनके बाकी मामलात के हवाले से पॉलिसी बदल गई, उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जिस तरह मीडिया में बहुत से लोग जॉब्स जो है वो खो बैठे हैं। तो इस सारी चीज को सामने रखते हुए मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है कि इस हवाले से कोई ऐसा रिएक्शन हो या रद्द-ए-अमल हो। चीजें बहुत स्मूथ हैं और इस हवाले से चूंकि देखिए तहरीक इंसाफ जिसने जनरल फैज हमीद को ओन करना था, फ्रैंकली वो भी ओन नहीं कर रहे, तो उसके बाद क्या गुंजाइश रह जाती है? क्योंकि जिनके लिए उन्होंने ये सारा कुछ किया, जितने मामलात थे इलेक्शन 2018 से लेकर फिर असम्बली में बंदे इकट्ठे करना, बलूचिस्तान में बाप पार्टी बनाना, कवानीन मंजूर करवाना, किसको कितना टाइट करना है, किसको गिरफ्तार करना है, ये जितने भी फैसले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में होते थे, तो उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो तो जनरल फैज हमीद करवाते थे। तो आज अगर तहरीक इंसाफ भी को खुशाइन करार दे रही है और कह रही है कि जी ये एक बड़ा अच्छा कदम है, तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद कोई ऐसी गुंजाइश नहीं रहती कि जिसमें हम ये कहें कि जी कोई ऐसी इख्तलाफी आवाज होगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ को भी समहाउ कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये मामला वहां से वहां रुकेगा नहीं, बल्कि वहां से उनकी तरफ आएगा। तो इसलिए वो चूंकि एक मेरा ख्याल है कि इस वक्त अगर उनको कहें कि जी वो बैगेज एक है जनरल फैज हमीद और कोई भी अफोर्ड नहीं करेगा उनके साथ खड़े होना इस वक्त, और स्पेशली एक पॉलिटिकल पार्टी जो इस हवाले से खासी बदनाम रही है, वो तो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि जी उस एक शख्स की वजह से हमारी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो। तो अच्छा, इस ये वक्त तो काफी लोगों की इंटरेस्टिंग है कि काफी लोग ये कह रहे हैं कि शायद अब पीटीआई की बारी है, या पीटीआई को मैसेज दिया गया है और उनको बताया गया कि अगर हम अपने ऑफिसर के साथ ऐसा कर सकते हैं तो आपकी अब बारी है। लेकिन आपको लगता है कि जो मौजूदा सेटअप है वो इतना कमज़ोर है, या उसको ये फेस सेविंग की ज़रूरत भी है कि वो बेटी को कुछ कह के बहू को सुनाना चाहते हैं? मतलब वो तो इतना इम्यूनिटी हासिल कर चुका है, इतना स्ट्रांग हो चुका है इस वक्त कि वो तो जिसको जो करना चाहे वो डायरेक्टली नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन इसमें चूंकि एक कोर्ट का प्रोसेस होना है, अदालती प्रोसेस होगा, ट्रायल होगा, उसके अंदर ये चीज इस्टेब्लिश करना अब प्रोसिक्यूशन का या हुकूमत का, रियासत का काम है। क्या वाकई जो 9 मई है उसमें ये इन्वॉल्वमेंट थी कि बानी पीटीआई और जनरल फैज हमीद राब्ते में थे और कोई इस तरह की प्लानिंग हुई कि जिसमें ये कहा जाए कि जी बगावत करनी है या गवर्नमेंट को तब्दील करना है या किसी का तख्ता उलटना है। तो ये जब तक इस कनेक्शन को इस्टेब्लिश नहीं किया जाएगा उस वक्त तक बहरहाल तहरीक इंसाफ परेशान रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से वो चीजें एग्जीक्यूट हुई 9 मई के दिन टारगेटेड में लोगों ने एहतजाज किया, तो उसी दिन से ये सरगोशी हो रही थी कि आखिर क्या वजह है कि ये सारा कुछ इतना प्लान था और एग्जीक्यूटेड किस तरह से हुई। तो ये वो एक नुक्ता है कि जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि जो आपने सवाल किया है उसको ये एड्रेस करेगा ये नुक्ता कि ये जो कनेक्टिविटी है या ये जो चीज इस्टेब्लिश करनी है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। सही। अच्छा, एक और बहुत अहम मामला मैं चाहूँगी आखिर में आप इस हवाले से भी हमारी रहनुमाई कर दें। आज पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारिजा ने नॉर्वे के जो सफ़ीर हैं
उनकी जो अदालती कार्रवाई में शमूलियत थी उसको पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दे दिया है, जबकि ईमान मज़ारी साहिबा ये फरमा रही थी कि ये तो एक मामूल की कार्रवाई होती है, एम्बेसडर्स जो हैं वो जाते रहते हैं, इस तरह से विटनेस करते रहते हैं अदालती कार्रवाई को। तो क्या वाकई उन्होंने ऐसा कुछ किया है जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती, और ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है कि एक सफ़ीर का अदालती कार्रवाई में जाना और फिर उसके बाद बड़ा अहम ये नुक्ता है। मैं चाहूँगी इस हवाले से भी उनकी जो राय है। बिल्कुल, मैं नॉर्वे के सफ़ीर के हवाले से आपसे पूछना चाह रही थी कि उनके हवाले से डिमाश भी जारी किया गया है और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया गया, उनका अदालती कार्रवाई को विटनेस करना। इसके हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल, ये मुझे थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग इसलिए लग रहा है कि जब इमरान खान को निकाला गया था तो उस वक़्त ये बहुत ज़्यादा अंडर डिस्कशन का था कि मुदाखलत क्या होती है और मुदाखलत क्या साजिश हो सकती है, या साजिश अलहदा चीज़ है और मुदाखलत अलहदा चीज़ है। मेरा ख़्याल है कि ये बहुत से गैर मुल्की मंदूबीन जो हैं, सफारतकार, वो अदालती कार्रवाइयों में आते भी रहे हैं। इसकी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं, लेकिन चूँकि इस वक़्त सिचुएशन ऐसी है और ईमान मज़ारी और उनके खिलाफ जो मुकदमा है उनके शौहर के, उसमें एक तरफ स्टेट है, तो इस वजह से ये थोड़ी मुश्किलात हैं। और मैं समझता हूँ कि नॉर्वे के हवाले से जो दफ्तर खारजा का खत है या उनकी तरफ से जो डिमार्श दिया गया है, इसको मैं एक अमूमी सफारती कार्रवाई ही समझता हूँ, क्योंकि हुकूमत को भी कहीं ना कहीं ये अंदाजा है कि इस तरह की जो चीजें हैं वो होती हैं। अदालती कार्रवाई के लिए गैर मुल्की लोग जो हैं वो बिल्कुल जाते हैं, लेकिन चूंकि कुछ इस तरह की क्लॉजेस मौजूद हैं कि जिनकी बुनियाद पर आप ये कह सकते हैं कि ये आलमी सफारती उसूल जो हैं उनको मद्देनजर रखते हुए फलां फलां चीज से गुरेज करना चाहिए। तो हुकूमत के पास भी एक मार्जिन है और जो सफारतकार वहां गए हैं उनके पास भी एक मार्जिन है। तो ये एक, मेरा ख्याल है कि सफारती जंग तो इसको हम कह सकते हैं, लेकिन ये समझना कि ये कोई बहुत ही तुंदो तेज मसला हो जाएगा, कोई बहुत ज्यादा हीटेड डिबेट हो जाएगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि डिप्लोमेसी के अंदर आप अपना मैसेज कन्वे भी करते हैं, अगले से बात भी करते हैं और आलमी कवानीन को और मुकामी कवानीन को मद्देनजर रख कर फिर अपने लिए रास्ता बनाते हैं। सही, बहुत शुक्रिया, बहुत डिटेल में आपने बड़े सेंसिटिव और अहम मामलात के हवाले बिल्कुल। से हमारी रहनुमाई की।